It is today first day of Hornbill, first lesson. That is the portrait of a lady. Lady means lady, औरत, महिला. Portrait means होता है the characteristic, to show the characteristic of a particular person, lady, thing, animal, whatever be there. So portrait of a lady means एक महिला का चरित्र, एक महिला का चरित्र चित्रण, characteristics, behavior, gesture, posture, manner, etc. whatever is going to be described by the narrator. The portrait of a lady has been written by a writer, the Khushwant Singh, Indian writer. Though he lived abroad, that is in foreign, yet his soul, his desire belonged to India. They have great love, deep love and affection with India. So in this lesson, narrator has described about the biography of his grandmother, that is Dadi. Of what character, of what thinking, of what notion and behavior that lady was. This has been described here, and if you will read, then you will come to know about all those. So now I would like to start. Read it. The portrait of a lady. My grandmother, like everybody's grandmother. Miss Poet is saying that his grandmother was just same as the everybody's grandmother. मिस राइटर की जो दादी थी वह ठीक दूसरे के दादी लोग जैसी थी, जैसे दूसरों की दादी थी वैसे ही राइटर की भी दादी थी. Was an old woman. This is simple line. No need to explain. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. This is the strange thing, unique line by the narrator, writer Khushwant Singh. Through this line, writer is saying that his grandmother had been same with the wrinkled face and of old age for 20 years. For when he had been knowing her. खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी दादी जब से वह देख रहे थे, होश संभाले थे, कॉन्शियस हुए थे, होश संभाले थे, बच्चे से बड़े हुए थे, देख रहे थे, तब से उनकी दादी 20 साल से उसी साइज, उसी रिंकल्ड फेस, मुरझाए हुए चेहरे, धारी झुर्री और धारीदार चेहरे और ओल्ड एज की थी 20 साल से. There was no change in her body, in her face, etc. Means his age had been fixed, stopped for 20 years. 20 सालों से वह एक ही पोजीशन और एज में थे. People said that she had once been young and pretty. Writer कह रहे हैं कि according to the other people, according to the society and neighbors, his grandmother had been very pretty and attractive and charming during her young age, but had even had a husband also. But that was hard to believe. Narrator कह रहे हैं कि it might be that his grandmother had been young, pretty, attractive during her young age, and also had a husband also. But for narrator, it was very hard to believe because of up to when, up to, that is the for long 20 years, he had been seeing her. He was finding her in the same position, same gesture, posture. There was no difference in the age, in the physical diminish or physical loss of that gold mother. दादी 20 साल से सेम पोजीशन में दिख रही थी. इसलिए नरेटर करे कि यह बिलीव कर पाना कि वो पहले कभी युवा थी
या पहले कभी सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, यह बिलीव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 20 साल तो नरेटर की उम्र हुई और जब से 20 साल से वह देख रहे हैं होश संभाले हैं, तब से दादी उसी अवस्था में दिख रही हैं, बिना हस्बैंड के, और ओल्ड होती है ना, मरती है ना, युवा होती है। फिर कैसे कोई बिलीव कर सकता है कि नहीं, वो जो थी अपने टाइम में युवा थी, सुंदर थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, दादाजी का चित्र, हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम में portrait, that is picture of the grandfather, dead late grandfather, was hanging. He wore a big turban, बड़ी सी पगड़ी सर पे बांधे थे फिगर में, and loose clothes were put on by him. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. कह रहे हैं कि the long white beard of the grandfather in the picture was covering the whole chest of the father, मतलब यहाँ से लटक के यहाँ तक ढक रहे थे. And by looking the portrait of grandfather, it was seeming that he had been near about the 100 years old. 100 साल पहले मरे होंगे, 100 साल कम से कम तो बीत ही गया होगा, हो गया होगा. He did not look the sort of person who would have a wife or children. नरेटर कह रहे हैं कि दादाजी को देखने से यह मालूम नहीं पड़ता था, ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कभी शादीशुदा हुई होगी और उनके भी कभी बच्चे हुए होंगे, वे इतने बूढ़े पिक्चर में दिखते थे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. By seeing, by observing the picture of the grandfather, it seemed only that he had a lot of grandchildren. उनके केवल नाती पोते हुए होंगे, बच्चे तो कभी हुए ही नहीं होंगे, डायरेक्ट नाती पोते. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. Means to think about totally impossible. वो कह रहे हैं कि दादी के बारे में कि अपने सभी युवा समय था, सुंदर थी, खूबसूरत थी, यह सोचना शायद बिल्कुल ही इम्पॉसिबल और असंभव है, यह कभी हो ही नहीं सकता अगर दादी को देखा जाए तो. यह रिवोल्ट, एकदम धारा के विपरीत जाना के जैसा था. In relation to दादी and about her young age and prettiness in young age. As she often told us of the games she used to play as a child. बचपन में वो जो खेला करते थे अक्सर, she used to tell that story about those games. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. कह रहे हैं राइटर कि हमारी दादी कहती कि हम बचपन में ये गेम खेला करते, ऐसे ऐसे किया करते थे. तो दादी करें कि यह, नरेटर करें कि यह हम लोग के लिए बड़ा असंभव होता है. इट वॉज टोटली डिफिकल्ट, अनबिलीवेबल फॉर देम, फॉर द नरेटर एंड अदर्स, एंड इट सीम्ड देम जस्ट लाइक अ फेबल. व्हाट इज फेबल? फेबल मीन्स द दंत कथा, जो गांव में लोग दादा परदादा से पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चलती आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड फेबल्स. जैसे राम की कहानी, श्री कृष्ण की कहानी, प्रॉफिट की कहानी, अदर टाइप्स ऑफ स्टोरी, किसी वीर योद्धा की कहानी. तो वैसे ही कोई कहानी लगता था कि बस यह तो कहानी में है, रियलिटी में इट हैड नॉट बीन पॉसिबल. She had always been short and fat and slightly bent. Slightly means हल्का सा, bent means मुड़ी हुई. means ऐसा करें कि जब से मैंने होश संभाला तब से देखा कि वह छोटे साइज की ही थी, हमेशा नाटेकत की, मोटी ताजी थी और हल्की सी मुड़ी हुई थी. Her face was a criss cross of wrinkles. उनके चेहरे पे क्रिस क्रॉस ढेर सारी झुर्रियां और धारियां पड़ी हुई थी. Running from everywhere to everywhere, एक जगह से दूसरी जगह, इस जगह से इस जगह, हर जगह झुर्रियों का निशान था, झुर्रियां पड़ी हुई थी. No, we were certain she had always been as we had known her. नरेटर कह रहा है कि नहीं. Narrator don't believe about saying that her dadi grandmother had been any time young and pretty, as they had been seen for a long time, for 20 years. His dadi had been in same position. He was ready to believe.
नेरेटर कि मैं यह मान सकता हूँ कि दादी हमेशा हमेशा से इसी तरह से हैं जैसे अभी भी दिख रही हैं, 20 सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन वह कभी युवा और खूबसूरत थी और कभी हस्बैंड वाली थी। दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, वह अनबिलीवेबल है, वह मानने लायक नहीं है। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older, कहने की बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि अब उससे अधिक बूढ़ी वो कभी हो ही नहीं सकती थी। and had stayed at the same age for 20 years, और लगभग उसी उम्र में वह 20 सालों तक रुकी रही होंगी। she could never have been pretty but she was always beautiful, narrator is saying, carrying towards some other direction he is writing his story। narrator कह रहे हैं कि she had never been pretty, pretty means क्या होता है, खूबसूरत, जैसे खूबसूरत गाल, गुलाबी होठ एटसेट्रा, मतलब अट्रैक्टिव, टू अट्रैक्ट समवन एल्स। वह खूबसूरत तो कभी नहीं रही होंगी, हाँ, बट हैड बीन ब्यूटीफुल, सुंदर और खूबसूरत रही होंगी। अब प्रेटी नहीं है तो खूबसूरत कैसे, बट है। चेहरे का खूबसूरत होना अलग बात है, दिल का ब्यूटीफुल और सुंदर होना, आत्मा का सुंदर होना, निर्दोष होना अलग बात है, काइंड हार्ट होना अलग बात है। तो दिस थिंग इज बीइंग सेड बाय द नरेटर, इज बीइंग इंडिकेटेड बाय द नरेटर that Dadi was not pretty and beautiful by the face, with the face, but she was beautiful with the heart. She was of kind heart, of kind nature lady. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. टेलिंग मीन्स यहाँ काउंटिंग है, बीड्स ऑफ रोजरी का मतलब होता है कंठमाला में जो कंठ होता है ना, जो लोग ऐसे ऐसे पूजा करते हैं उसे बीड्स ऑफ रोजरी कहते हैं, माला जिसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि 100 टाइम्स ग्रैंडमदर यूज्ड टू कम इनसाइड ऑफ द होम, आउट ऑफ द होम बाय बेंटिंग स्लाइड, टेकिंग द बीड्स इन हैंड्स एंड काउंटिंग देम, रोजरी, माला लिए हाथ में, उसकी जो एक एक रोजरी है, मड़ी है, उसको काउंट करते हुए, राम 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 जैसे जो करती हो उसे लेकर के वह समटाइम्स आती हैं, समटाइम्स जाती थी, घर में हजारों टाइम्स यह काम करती थी, लेकिन कभी युवा नहीं रही। दैट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट फॉर द नरेटर। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, कि उसके सिल्वरी, दैट इज व्हाइट कलर हेयर यूजुअली एंड ऑलवेज हेड स्प्रेडेड ओवर हर फेस, एंड व्हाट टाइप ऑफ हर फेस, पोकर्ड, दैट इज रिंकल्ड पेल विदर्ड फेस, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल, ऑडिबल मीन्स होता है एबल टू हियर, इनऑडिबल मीन्स नॉट एबल टू हियर, जो सुना न जा सके। यानी वह काउंट करती, घर में आती जाती रहती, बुदबुदाती रहती, केवल उनके ओठ जो है वो मूव करते, मोशन में होते, ओठ को देखने से लगता है कि नहीं वो पूजा कर रही हैं, प्रेयर कर रही हैं, बीड्स गिन रही हैं, रोजरी गिन रही हैं, लेकिन उनके मंत्र को या पूजा के शब्दों को सुना नहीं जा सकता था। Yes, she was beautiful, she was like the winter landscape in the mountains. विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में क्या होता है, जाड़े में बर्फबारी होती है, टोटल सफेद व्हाइट कलर की व्हाइटनेस छा जाती है, एंड देयर बिकम्स इवन नॉट अ सिंगल लिटिल बिट साइन ऑफ अदर डिफरेंट थिंग, इवन नॉट अ स्पॉट। जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है एकदम सफेद हो जाता है, कहीं रंच मात्र कोई पेड़ पौधे कोई भी चीज अदर नहीं दिखाई देती है, एंड व्हाइटनेस, सफेदी जो है इनोसेंट, सादगी और सिंप्लिसिटी का सिंबल होता है। So poet is saying that his grandmother was just as white as the winter covered mountain। जाड़े में जैसे पहाड़ सफेदी हो जाती है, एकदम साफ सुथरा क्लीन निर्दोष सा दिखाई देता है, ठीक वैसे ही दादी का नेचर भी जो था वह भी एकदम व्हाइट सफेद एकदम निर्दोष इनोसेंट टाइप का था। There was not even a little bit deceitfulness, fraud, lie was in her heart। उसके दिल में छल कपट दंभ द्वेष झूठ रंच मात्र नहीं था। जैसे कि
जाड़े के समय में सिर्फ बर्फ ही बर्फ, सफेदी दिखाई देती है, जो कि सादगी और सिंप्लिसिटी की सिंबल होती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, कह रहा है कि एन एक्सपेंस कौन, लैंड विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन जो है उसी को एक्सप्लेन इन्होंने क्या है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, यानी एकदम शांति और सादगी का विस्तार, उसका सिंबल। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ब्रीदिंग लेते हुए पीस शांति एंड कंटेंटमेंट आत्मसंतुष्टि। ऐसा नहीं है कि अगर आप, यह जरूरी नहीं कि आप शांत हैं तो आप में आत्मसंतुष्टि है, और यह भी नहीं कि आप में आत्मसंतुष्टि है तो शांत है। हो सकता है कोई टेंशन हो आपको, आप शांत ना हो लेकिन आत्मसंतुष्टि हो। ये भी हो सकता है कि टेंशन हो लेकिन आत्मसंतुष्टि ना हो, लेकिन टेंशन भी ना हो, आप शांत हो। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो नरेटर कह रहे हैं कि उनमें शांति का भी सिंबल थी वो और आत्मसंतुष्टि का भी। मींस शी वाज टोटली फ्री फ्रॉम एनी डिसीट, एनी फ्रॉड, एनी 420 एटसेट्रा 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 ऑफ दैट टाइप। My grandmother and I were good friends. Narrator now showing their relationship between them. Narrator, and what was the relation? What type of relation between narrator, poet Khushwant Singh and his grandmother? So he saying, my grandmother and I were good friends. Both were good friends. My parents left me with her. इनके मम्मी पापा खुशवंत सिंह को उनके दादी के साथ छोड़ दिए थे। When they went to live in the city, जब वे शहर रहने गए, and we were constantly together, और तब से दादी और नाती यानी खुशवंत सिंह और उनकी दादी एक साथ रहते थे। She used to wake me up in the morning, दादी अक्सर इन्हें सुबह में जगाया करती, and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Narrator is saying that whenever his daddy used to prepare him to go to school, put on clothes, dresses, and make bath, etc., then his grandmother used to sing the prayer of the God loudly, with the purpose that narrator would hear the loud prayer and would learn with in heart. But narrator is saying that he was interested in listening that prayer, but he did never care to learn it. पोएट कह रहा है कि हमने सुना, अच्छा भी लगता था, लेकिन हमने कभी याद करने के बारे में नहीं सोचा, ना हमने कभी याद किया। I listened because I loved her voice, कह रहे नरेटर कि ये दादी की आवाज को लव करते थे, अच्छे लगते थे, इसलिए दादी की आवाज सुनते थे। But never bothered to voice, but never bothered to learn. Then she would fetch my wooden slate. अंत में दादी नहला धुला तैयार करके इन्हें इनका स्लेट पकड़ाती, which she had already washed and plastered with yellow chalk. उसे जो वेल मेंटेन्ड होता उसे साफ सुथरा चिकना कर देती कि बच्चा इसमें भी पढ़ेगा। A tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. कहने की बासी रोटी खाना सब्जी देती, इन मोटी मोटी इन्हें खिलाती सुबह ही, उसके बाद स्कूल को लेकर चल देती अपने साथ। और जब राइटर को वो स्कूल लेकर एक अपने साथ चलते हैं तो साथ साथ में क्या करते हैं कि बासी रोटी चपाती अपने हाथ में ले लेते हैं और पूरे रास्ते कुत्तों को वह रोटी डालती हुई जाते हैं। यानी स्कूल भी बच्चों को पहुंचाने जाते हैं और साथ में उन कुत्तों को रोटी भी डालती जाती है। मीन्स इट शोज द पायस एंड रिलीजियस नेचर ऑफ द ग्रैंडमदर ऑफ द खुशवंत सिंह। माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, नेटर कह रहे कि मेरी दादी अक्सर स्कूल जाया करती थी with me because the school was attached to the temple. Attached to का मतलब very close, affixed to, beside of, बगल में सटा हुआ इनके स्कूल से टेम्पल था, इसलिए दादी ने स्कूल में पहुंचा के खुद मंदिर चला जाया करती थी। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो मंदिर का पुजारी होता वह इन बच्चों को अल्फाबेट पढ़ाता, मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाता। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet of the prayer in a chorus. Chorus में होता है ग्रुप सॉन्ग, एक साथ एक लाइन में। तो कह रहे कि
हम लोग जमीन पे बैठ जाते, एक लाइन में एक साथ। पुजारी जो थे हम लोग को कुछ अल्फाबेट और छोटी बड़ी ABCD एक्सेट्रा पढ़ाते, साथ में कुछ प्रेयर भगवान का भजन भी पढ़ाते थे, और हम सब बच्चे एक साथ एक स्वर में वह प्रेयर पढ़ा करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर में होता है पवित्र उपदेश, यानी किताबों ग्रंथों में लिखे हुए सब। तो इनकी दादी जो थी वह कुछ उपदेश वगैरह पढ़ा करती, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ा करती जब तक स्कूल चलता। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हमारा क्लास स्कूल खत्म होता, दादी भी अपना पढ़ना पूजा पाठ खत्म करते हैं, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम दोनों पीछे वापस घर को साथ चल देते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, अब इस समय गांव के जो कुत्ते थे हमें मंदिर के दरवाजे में मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे घर तक हमें अनुसरण करते, पीछे पीछे आते। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए ग्रोल करते हुए वे हमारे साथ आते हैं। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और वो क्यों लड़ते, तो जो दादी थोड़ा थोड़ा करके चपाती कुत्तों को फेंकती थी, उसी चपाती को पाने के लिए वे आपस में लड़ते हैं, और उसके बाद साथ साथ इनके घर भी चले आते। When full stop through them, when my parents were comfortably settled in the city, अब परिस्थितियां चेंज हो रही है। नाटक यानी कि जब इनके मम्मी पापा शहर में सेट हो गए, उसके बाद they sent for us, मीन्स उन्होंने इनको यानी नरेटर को और इनकी दादी को भी अपने यहाँ बुला लिया शहर में गांव से। That was a turning point इन आवर फ्रेंडशिप, अब नाटक यानी कि वही जब हम लोग शहर गए तभी टर्निंग पॉइंट यानी हमारे रिश्ते में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे तक हम लोग इतने क्लोज थे, अब धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगे। ऑल्दो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब परिवर्तन क्या होने लगा, पहले तो दादी का जो साथ आती थी स्कूल गाँव में बच्चे के अपने खुशवंत सिंह के, शहर में वो छूट गया, दादी अब साथ में स्कूल नहीं आ पाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, कहने कि अब मैं स्कूल के बस में स्कूल जाने लगा। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब शहर की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे जिन्हें रोटी खिलाया जाए। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और अब दादी कुत्तों की जगह जो गौरैया और चिड़िया थी घर के बरामदे में बैठकर उन्हें खिलाने लगी, अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े एक्सेट्रा, और इस तरह से इनका जीवन बीतने लगा। So students, I stop here today. If you have any query, then ask me.